बॉलीवुड में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो चलिए जानते हैं द टॉप स्टोरीज रिवॉल्विंग अराउंड द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। द बिगेस्ट स्टोरी, दीपिका पादुकोण वर्सेस संदीप रेड्डी वांगा's स्पिरिट। सो एक कंट्रोवर्सी तब रिसर्फेस हुई जब प्रोड्यूसर प्रणय रेड्डी वांगा, जो कि संदीप रेड्डी वांगा के भाई है, he claimed that Deepika Padukone wanted a 10% profit share along with remuneration and scheduling demands. उन्होंने ये भी कहा कि कुछ confidential details भी लीक हुई थी। These are the claims from the Wanga camp, but दीपिका ने publicly कोई statement नहीं दिए। अब दीपिका ने earlier publicly broader working hours के अराउंड भी डिस्कशन जरूर किया था, arguing that an 8-hour shift shouldn't be treated as unreasonable. Now actually आमिर खान ने भी कुछ साल पहले इससे रिलेटेड कुछ कहा था। Hear this out. Equally, in fact. See, in films, the fact of the matter is that your fee is connected to your ability to fill the theater. Now, yes, heroines work very hard, but so do cameramen, so do the light boys on the set. All of us should be paid equally. Everyone works hard. Comparing the heroine with the light boy. No. I'm comparing the heroine and the light boy and myself in the same. So I'm not saying heroine and light boy. I'm saying all of us are working hard. I'm working hard. So is the light boy. Why is he paid differently from me? It's not because he's a man or a woman. You're confusing the issue there. The reason why you're paid differently in cinema is because the market forces understand that you're able to bring that much money back into a film. So if I am paid 10 rupees, it's because I can bring back that money and more. If I am paid 5 rupees, if Rani can fill in more seats than I can. Now if Deepika feels that she can lure the audience to the theaters, तो वो शायद unreasonable नहीं हो रही। अब जब मेल एक्टर्स को उनका से मिल जाता है, then why not female leads? अब चलते हैं एक और हॉट टॉपिक पे, TVF वर्सेस सिद्धार्थ मल्होत्रा। द मूवी वन एक फैसिनेटिंग स्टोरी है बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स समथिंग रियली बिग। नाउ TVF इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल डिजिटल स्टोरी टेलिंग कंपनीज एंड हैज एंटर्ड द थिएट्रिकल स्पेस along with Balaji Telefilms. लेकिन reports around the film's creative process created controversy, including claims about director Deepak Kumar Mishra's exit over creative differences, where actors Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia have demanded reshoot of many scenes. Now my hot take, Bollywood is struggling with quality content. अगर आप सिद्धार्थ मल्होत्रा की खुद की फिल्मोग्राफी देखें तो शायद उनके मैनेजर को भी चक्कर आ जाए। अब ऐसे में if you let go of a team like TVF जो कि content game के खुद किंग्स है, I'll say it's not a smart move. Now the next story is on Shahid Kapoor. We all love Shahid Kapoor. I think he's an incredible actor. But उनका करियर एज अ मेन स्ट्रीम एक्टर कहाँ जा रहा है? कॉकटेल 2 को काफी खराब रिव्यूज मिले एंड रिसेंटली ही बैक्ड आउट ऑफ द हिंदी रीमेक ऑफ फ्रीकी फ्राइडे। शाहिद कपूर ने इर्द गिर्द कुछ प्रोफेशनल रखे हैं जो आजकल उनके लिए क्रिएटिव डिसीजंस ले रहे हैं एज टू व्हाट प्रोजेक्ट टू डू नेक्स्ट। बट मेरे लिए शाहिद की एक्टिंग या टैलेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज पोजिशनिंग। अब कबीर सिंह के बाद ही हैड अ मैसिव अपॉर्चुनिटी, लेकिन अगर आप देखें तो वो कभी एक्शन कर रहे होते हैं, तो कभी रोमांस कर रहे होते हैं, कभी ड्रामा कर रहे होते हैं, या कभी OTT कर रहे होते हैं। नाउ कंपेयर दैट विद रणवीर एंड विकी। ये सारे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, ना कि परफॉर्मेंसेस से। शाहिद कपूर को देख के कभी कभी ऐसा लगता है he's just finding his next lane. Now he's coming back with Farzi 2, and maybe now Shahid's future lies in character-driven cinema, OTT, and darker roles. Now at this stage of his career, maybe a conventional superstar banna may not be an ideal game for Shahid. So now the next story. This one's interesting. Ranveer Singh's next film. Ranveer Singh is reportedly going from Dhurandhar to the Apocalypse. उनकी नेक्स्ट प्रोजेक्ट विद जय मेहता, जो कि हंसल मेहता के बेटे हैं, जिन्होंने लुटेरा बनाई थी ऑन हॉटस्टार, is being developed as a post-apocalyptic survival thriller currently associated with the title प्रलय। और इस मूवी में कल्याणी प्रियदर्शन भी दिखाई देंगी। ये मूवी प्रोड्यूस करेंगे अनन्या बिरला, हंसल मेहता along with रणवीर सिंह। And honestly, this is good because रणवीर सिंह को धुरंधर के बाद कोई सेफ रोल की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट उन्हें एक ऐसे रोल की जरूरत है जिनमें ऑडियंसेस ने उन्हें कुछ ऐसा करते हुए देखा ही नहीं। एंड अ हिंदी ज़ॉम्बी फिल्म कुड बी रियली एक्साइटिंग। नाउ हियर्स माय हॉट टेक, क्या बॉलीवुड एक अच्छी ज़ॉम्बी मूवी बना सकता है? हाँ, हमारे पास एग्जाम्पल है इन गो गोवा गॉन, लेकिन यहाँ पे हमें ज़ॉम्बीज के साथ कॉमेडी की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हमें ज़ॉम्बीज को एज VFX डेकोरेशंस भी नहीं देखना, हमें चाहिए एक एक्चुअल सर्वाइवल थ्रिलर। एंड इफ जय मेहता गेट्स दैट राइट, इट कुड बी अ ग्रेट करियर मूव फॉर रणवीर। अब ये अगली स्टोरी हर एक फिल्म मेकर को गौर से सुननी चाहिए। मैचबॉक्स शॉट्स, जिन्होंने हाल ही में ऑपरेशन सफेद सागर बनाई, हैज एन एब्सोल्युटली इनसेन क्रिएटिव इकोसिस्टम। अब ये सुनो, उनकी अपकमिंग स्लेट इंक्लूड्स अ न्यू श्रीराम राघवन थ्रिलर इन द जॉनी गद्दार जोन, a new dark comedy thriller like Monica Oh My Darling from Vasan Bala, and another season of Scoop with Ansel Mehta. And here's why this matters. अब audiences को बड़े stars नहीं चाहिए, they need a filmmaker with a voice.
अगर श्रीराम राघवन 2026 में जॉनी गद्दा टाइप की एक थ्रिलर बना रहे हैं देन आई एम इंटरेस्टेड। अगर वसंत बाला मोनिका उमा डार्लिंग जैसे एक डार्क कॉमेडी बना रहे हैं देन आई एम इंटरेस्टेड। अगर हंसल मेहता इज रिटर्निंग विद स्कूप 2 देन आई एम इंटरेस्टेड। अच्छा कंटेंट बनाओ यार, इंटरेस्ट फॉलोज माय ब्रदर, इंटरेस्ट फॉलोज। एकता कपूर और साजिद खान रिपोर्टेडली एक हॉरर कॉमेडी मूवी लेकर आ रहे हैं, हीरो की हॉरर। इस फिल्म से गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा को लॉन्च किया जा रहा है और ये कॉम्बिनेशन काफी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ एकता कपूर जिनके पास यूथ एंटरटेनमेंट का डेकेड लॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है और दूसरी तरफ साजिद खान जो कि कॉमेडी और कमर्शियल बॉलीवुड का एक वेरी फेमिलियर नेम है। उनके मी टू एलिगेशंस के बाद ये उनकी पहली सीरियस कमबैक फिल्म है आफ्टर 13 इयर्स। अब इन सब के बीच में एक स्टार किड लॉन्च हो रहा है। नाउ माय हॉट टेक इज, क्या बॉलीवुड अब भी स्टार किड्स को लॉन्च करके हमें कन्विंस करने की कोशिश कर सकता है? अब ऑडियंसेस इंस्टाग्राम, ओटीटी, यूट्यूब हर जगह एक नया चेहरा रोज देखता है। सो एक बात तो पक्की है, बाप के नाम से सिर्फ काम नहीं चलेगा, यहाँ पे स्क्रीन प्रेजेंस, कैरेक्टर प्लस कंटेंट चाहिए होगा। एंड सच कहूं तो हॉरर कॉमेडी बॉलीवुड का सबसे पुराना प्लेग्राउंड बन चुका है। नाउ दिस कुड बी अ रियली स्मार्ट मूव या फिर एक ये वैसी पिक्चर होगी जो काफी सालों तक किसी कोने में पड़ी रही। अब ये सारे एक्टर्स प्रोडक्शन हाउसेस क्यों खोल रहे हैं? Now Karthik Aryan has reportedly opened a production house called as Dopamine Studios. And now the larger trend is that more actors increasingly want their own production banners. But why? Answer simple है, actors don't want to be just actors anymore. अब पहले ऐसा होता था कि एक्टर का बिजनेस मॉडल था कि फिल्म करो, फीस लो और अपनी अगली फिल्म पे जाओ। Now here's my hot take. Today an actor wants IP, he wants creative control, he wants to develop projects, he wants to be a part of the creative process. More importantly, he wants to take control of what happens when the phone stops ringing. क्योंकि स्टारडम परमानेंट नहीं होता। Now actors like रणवीर, आलिया, कृति, इन सबको पता है कि the industry can move on very quickly. So production houses are not necessarily an ego project, they are an insurance. अब आते हैं एक बड़े सवाल पर, why are we remaking films? अब ये प्रेम कीटाणु को ही ले लो, एक हिंदी रोमांटिक ड्रामा जो कि यूपी एनसीआर, कॉलेज लाइफ, फर्स्ट लव, हार्ट ब्रेक और नॉस्टैल्जिया के अराउंड सेट है। लेकिन आज की ऑडियंस कंप्लीटली चेंज हो चुकी है एंड इनफैक्ट मूव ऑन भी कर चुकी है। तो हर फिल्म का रीमेक करना जरूरी क्यों है? कांट वी जस्ट वॉच द ओरिजिनल? तो सवाल ये नहीं है कि कैन वी मेक अ साउथ फिल्म, सवाल ये है कि हिंदी वर्जन क्या नया ऐड कर सकता है। और अगर आंसर कुछ भी नहीं है तो रीमेक क्यों करें? हम कभी ये क्यों नहीं सोच सकते कि हिंदी फिल्म से कोई दूसरी इंडस्ट्री भी कुछ कॉपी कर सके? क्या ऐसा कभी टाइम आएगा? Now if you agree or completely disagree, let me know in the comments. मिलते हैं अगले वीडियो में।